آ چکے ہیں, جوائن کر لیا ہے. انشاءاللہ 22 سے بھی ہم لگانے جا رہے ہیں, آپ کے ایکیوز بنائیں گے اس کے اندر آئی تھنک, اور انشاءاللہ آپ کے خلاف بھی ہم مقدمہ لڑیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بلاول زرداری آج کل ایسے نہیں متحرک ہوئے, ان کے متحرک ہونے کی بھی کوئی وجوہات ہیں. سنا ہے کہ ان کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ ملک کے نئے سربراہ بننے جا رہے ہیں. تو بلاول زرداری صاحب, بغیر محنت کیے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی پھل نہیں دیتے. آپ محنت ملک کی مفاد کے لیے کریں, آپ فیصلہ سازوں کے لیے کام نہ کریں. فیصلہ سازوں کی سسٹم کو اب اس عوام نے ریجیکٹ کر دی ہے. بہتر ہے کہ آپ ملک کے آئین کی بات کریں, اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے اس آئین کا کھڑوال نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی قائد عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے ایک تحریک شروع کی ہے, اور وہ جلسے کی صورت میں ہو رہی ہے. سوابی کے جج صاحب کے سامنے ہوا, سنگجانی میں جج صاحب کے سامنے ہوا, لاہور کے اندر انہوں نے ہمیں جو مقام دیا, آپ میڈیا گواہ ہیں, کس جنگل میں منڈی, پتہ نہیں کون سی منڈی, منڈیوں کے لفظ ان کو بڑے پسند ہیں, پتہ نہیں ان کو کیا پیار ہے ان سے, کیا لگاؤ ہے کہ بس جس کے آخر میں نون چھوٹی آتی ہے وہ ان کو بڑا پسند ہے. انہی جگہوں پہ ہی ہمیں جگہیں دیتے ہیں. اب ہے انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو پنڈی میں گرینڈ جلسہ ہونے جا رہا ہے, اور کراچی تیار بیٹھا ہے کافی ٹائم سے کہ خان صاحب کال کیوں نہیں دے رہے. تو اکتوبر کا مہینہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے لیے بڑا زبردست آ رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پنڈی کے جلسے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے وہ کراچی کی کال دیں گے, جس کے لیے الحمدللہ کراچی کا ووٹر بھی تیار ہے, خان کے چاہنے والی بھی تیار ہیں, خان کے عہدیدار بھی, ذمہ داران بھی, ورکرز بھی تیار ہیں. اس سلسلے میں ہم نے عمران خان رہائی, آئین کا تحفظ اور عدلیہ بچاؤ ریلی ہم انشاءاللہ تعالی کمنگ سنڈے کرنے جا رہے ہیں, پرامن ریلی کرنے جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے جس کے اندر ہم بار کو بھی انوائٹ کریں گے, تمام بزنس مین کو, سول سوسائٹی کو, تمام لوگوں کو انوائٹ کریں گے, کیونکہ یہ عدلیہ کا معاملہ ہے, آئین کے تحفظ کا معاملہ ہے. ہم اس سلسلے میں کمشنر کراچی کو درخواست دے چکے ہیں پرمیشن کے لیے. مجھے امید ہے کہ جہاں بلاول زرداری جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جہاں اس ملک کے آئین کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کراچی میں یہ گرینڈ ریلی جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اس میں کسی قسم کے روڑے نہیں اٹکائے گی. ہمیں جس طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں کو شارع فیصل بند کر دیا جاتا ہے, کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے, شہید ملت بند کر دیا جاتا ہے, کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو 5 مہینے سے جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو دہشت گردی کو روکنے کا کام کس کا ہے؟ یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. مطلب ان کو شرم ہی نہیں آتی, یہ کورٹ کے اندر آ کے یہ باتیں جب کرتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے لیے دہشت گردی کا خطرہ ہے, تو دیگر سیاسی جماعتیں کیا پاکستان کی نہیں ہیں؟ صرف پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی کہ اس میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری 2 تاریخ کو انشاءاللہ ہیریں گے ہائی کورٹ کے اندر, ہمیں جلسے کی بھی اجازت ملے گی. بلاول زرداری صاحب, میں ڈائریکٹ اس میڈیا کے توسط سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے گرینڈ ریلی رکھی ہے اتوار کے دن. آپ کی انتظامیہ ہمیں الاؤ کرے گی, اور آپ کو اس میں کلیئر میسج آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر, پاکستان میں تو ہے ہی ہے کیونکہ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, تو پاکستان تحریک انصاف کراچی میں ختم ہے, یہ زندہ ہے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میں تمام کراچی والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اتوار کو وہ جو ہماری ریلی ہے, جو پریس کلب سے جس کا آغاز ہوگا اور مزار قائد پہ اس کا اختتام ہوگا, آپ تمام لوگوں نے شام 4 بجے پریس کلب پہ پہنچنا ہے. اس پرامن ریلی کو کامیاب کرنا ہے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, عدلیہ بچاؤ کے حوالے سے اس ریلی کا انعقاد کر رہے ہیں. آپ سب نے شرکت کرنی ہے اور بتانا ہے کہ خان کے چاہنے والے کراچی کے اندر بھی موجود ہیں. میرے ساتھ سینئر نائب صدر فہیم خان صاحب موجود ہیں, وہ بھی اظہار خیال کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, جس طرح آئین پہ یہ شب خون مار رہے تھے, چونکہ میں بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, بہت سے قانون, بہت سی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہمارے دور میں بھی آئی جو کہ پاکستان کے حق میں تھی, پاکستانیوں کے حق میں تھی, پاکستان کی مفاد میں تھی. مجھے وہاں پتہ چلا اور مجھے افسوس ہوا. مجھے افسوس اس لیے ہوا, اگر ایک چپڑاسی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے واش روم یوز کرتا ہے,
जिस तरह वो मेंबरान मैसूर रहे पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि उनको वॉशरूम जाने तक की इजाजत नहीं थी, वो वहीं सोते रहे। आपने तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पे, वहीं टांगे सीधी की, वहीं लेटे रहे। इतने बेबस है ये लोग कि ये वहां नौकरी कर रहे हैं। आपको अगर जैसे तैसे 2 नंबर तरीके से सही पार्लियामेंट हाउस भेज दिया, आप शर्म करें, आप पाकिस्तान की मफाद में कानून साजी करें। बिलावल भुट्टो साहब कल कहते हैं जी फ्लोर क्रॉसिंग कोई भी कर सकता है। और भाई बात यह है, अगर 8 फरवरी को फहीम खान को किसी ने वोट दिया, राजा अजहर को किसी ने वोट दिया, या जितने आजाद उम्मीदवार थे उनको वोट दिया, वो हमारे शक्लों पे नहीं दिया, वो इमरान खान को वोट दिया, वो इमरान खान के लिए वोट दिया, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वोट दिया। लिहाजा जिस तरह मैं सलाम पेश करता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, तो ये जो रिजर्व सीटें, जिस तरह अनवर भाई ने बात की कि जब तक आपका हाउस कंप्लीट नहीं है, आप महरूम है, अब नुमाइंदगी नहीं है वहां पे, रिजर्व सीटों की नुमाइंदगी नहीं है, माइनॉरिटी की नुमाइंदगी नहीं है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है या कोई भी अमेंडमेंट आती है, आप उसका जो भी बिल होता है वो आप ले करते हैं, उसको स्टडी करते हैं मेंबरान, उस पर बहस होती है। एंड टाइम तक तो आपको वो बिल भी नहीं मिला, 2-3 किस्म के बिल घूमते रहे, आपको पता ही नहीं है। इस तरह की नौकरी गधे करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता किधर जाना है, बस डंडा मारते और चलते रहते। आप गधों से भी बदतर हो गए हो। आप पाकिस्तान के लिए काम करें, आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। इधर दिन ब दिन आवाम मरती जा रही है, खुदकुशियां कर रही है, बिल आवाम नहीं भर सक रही, महंगाई से महंगाई होती जा रही है। आप उसके लिए कानून साजी करें, आप करें मेरे गरीब बच्चों के लिए कानून साजी करें, आप लियारी के बच्चे के लिए कानून साजी करें, आप कुरंगी के बच्चे के लिए कानून साजी करें। पीने का पानी कराची में नहीं है, आप उसके लिए कानून साजी करें। सिंध का पानी, जो दरिया सिंध का पानी है, वो आप डिवाइड कर रहे हो, आप दे रहे हो। वो बंजर जमीनें, कोई 48 लाख कनाल जो जमीनें हैं, उनको आप दे रहे हो। यहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, आप वहां पे फार्मिंग करने जा रहे हो। तो इंसानों को तो आप जीने नहीं दे रहे। तो इसी जुमरे में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इतवार के रोज कराची प्रेस क्लब से एक शानदार रैली, जिसको ग्रैंड रैली कहते हैं, जिससे कांपे टांगेंगी हुकूमत की, कांपे टांगेंगी फैसला साजों की। आपसे गुजारिश है, हम आइन के मानने वाले लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमने इजाजतनामा मांगा है, हमें इजाजत दें। अगर आप इजाजत नहीं देंगे, हम तब भी पुरअमन रैली करेंगे और करके दिखाएंगे। पूरा कराची इतवार के रोज इंशाअल्लाह सड़कों पे होगा। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मैं इस मौके के हवाले से जो फेडरल लॉ मिनिस्टर है, मैं उनको एक शर्म दिलाता हूं कि अगर आप में थोड़ा सा शर्म है तो आपको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं, आप बहुत बेशर्म आदमी हो कि आप हाउस के अंदर कहते हो कि 10:30 बजे कि मुझे बिल की कॉपी मिल गई। बिल तो बनाना आपने नहीं था, आपकी नीचे कमेटी ने बनाना था बिल, और आप ये कहते हो कि बिल की कॉपी मुझे मिल गई। ये बेशर्म आदमी को तो फौरन रिजाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंतहाई माजरत में असल में खालिद एडवोकेट साहब हमारे लेट आए हैं, तो मैं चाहता हूँ NA 231 के हवाले से जो प्रोग्रेस है वो खालिद एडवोकेट साहब आपके सामने जरा जारी ख्याल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद महमूद एडवोकेट है। NA 231 से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था, और जनरल इलेक्शंस में आपने देखा जिस तरीके से रिगिंग हुई। लेकिन वो कहते हैं ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश नहीं करते। जो उन्होंने कोशिश की वो भी ऐसी भोंडी की कि पकड़ी गई। अब ट्राइब्यूनल ने मेरे 4 पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग का ऑर्डर किया था। तो गुज़श्ता 4 महीने से हकीम बलोच साहब जो वहाँ से सो कॉल्ड शेमफुल विनर कैंडिडेट बनाए गए थे, प्रपोज थे फॉर्म 47 के, उन्होंने स्टे लिया जो कल विकेट हो गया। मेरे पास ऑर्डर्स की कॉपी मौजूद है। 4 पोलिंग स्टेशंस में भी उनको इतना डर है क्योंकि वो वहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर सकते और वहाँ पे उसको मैनेज नहीं कर सके, इस वजह से उन्होंने वो शेल्टर लेने की कोशिश की। अब आ जाता हूँ मैं एक दूसरी बात के ऊपर कि देखें, सबसे बड़ा शब खून तुम्हारा इन्होंने 8 फरवरी को कि जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए से सारा मैंडेट कन्वर्ट किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक स्लो
पॉइजनिंग करते हुए 17 को जो एक्सपोज हुआ है इंसिडेंट, पिपरी बिन कासिम, इनका जो स्ट्रांग रूम है वहां पे इन्होंने नकबजनी की है, जो चोरी की है, जो डाका मारा है, ये सबसे बड़ी वायलेशन की है। और उसकी जो एक भोंडी FIR ने काटी है वो भी इंतहाई शर्मनाक है। इनकी उस FIR में इन्होंने एक जनरल एक्विजिशन की है, 17 तारीख का इंसिडेंट, 18 को मैटर वो रिपोर्ट हो रहा है। इतना अर्जेंसी वाला मैटर, और उसके जो SOPs है उसको टोटली वायलेट किया गया है। और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर कराची और एक एडमिन ऑफिसर को उन्होंने 20 दिन के लिए सस्पेंड किया है। पूरी कौम के मैंडेट को चोरी करना, नकबजनी करना, टेम्पर करना, ये तो आर्टिकल 6 की वायलेशन में भी आता है, एंटी टेररिज्म की वायलेशन में भी आता है, और इसके साथ साथ ये एक बेसिकली अपने जो फराइज मनसब भी है उसकी वायलेशन में भी आता है। और मैं कहता हूं कि इसमें सुल्तान राजा साहब जो है, जो हमारे सो कॉल्ड, मैं उनको कहूंगा शेमफुल कहूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो एक्यूज हैं, वो इसमें नंबर 1 मुलजिम है। और इंशाअल्लाह अजीज कल मलीर कोर्ट में 22A के तहत में उनको भी इंशाअल्लाह एक्यूज साइड करने के लिए पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। चलो मीडिया से सवाल तो सवाल आपने किया नहीं, ये नहीं हो गया है। मैं ये कह रहा था कि आपने रैली का ऐलान किया, रैली की अगर इजाजत नहीं दी गई तो फिर जो आप लगता है कारकुनान की फिर से गिरफ्तारी होगी, फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर आप इजाजत की बात करें, आप कोर्ट में इजाजत लेने जा रहे हैं, कोर्ट आपको इस बार इजाजत दे देगा? देखिए, अदलिया ने तो बड़े बड़े फैसले किए हैं और अदलिया भी हमें भरोसा है, इसीलिए 4 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2 तारीख को जो हमारी नेक्स्ट हेयरिंग है जलसे के हवाले से, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये राइट मिल जाएगा कि जलसा करने के लिए हमें इजाज़त मिल जाएगी। रैली की इजाज़त मिले ना मिले, गिरफ्तारियाँ तो फिर भी होती हैं, खौफ राज तो फैलाया जाता है। इसीलिए मैंने आज बिलावल को मुखातिब करके कहा है, उम्र में मुझसे छोटा है, वो मनसब में बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिलावल जमहूरियत की बात करते हैं। उनकी वालिदा मोहतरमा शहीद जो हैं वो एक जमहूरियत का दावेदार थी, मतलब जमहूरियत पे बड़ा उनका एक विजन था। तो मैं अब हम ये इस मीडिया के तवज्जो से देखेंगे कि बिलावल क्या इस आईनी तरमीम की भागदौड़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची को रैली की इजाज़त देता है या नहीं देता। रैली इंशाल्लाह होगी, कराची की आवाम सड़कों पे होगी, हम पुरअमन रैली करना चाहते हैं, इजाज़त दें ना दें, दोनों सूरतों में पुरअमन रैली इंशाल्लाह हम इनेकाद करेंगे। अच्छा राजा साहब, मेरा नाम जुबैर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अरसे से, मतलब मेरे घर की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात यह है कि जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं और मीडिया के तवज्जुह से भी आप बात कर रहे हैं। जमहूरियत एक अमल का नाम है जो कि एवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ती है। 2006-7 में जो हमारा पाकिस्तान का डेमोक्रेसी का इंडेक्स था वो 2013 में बढ़कर 4.5 पे चला गया और अभी वो नीचे आ चुके 3.3 तक। और उसकी वजह आपको पता है कि 2014 के बाद से क्या हालात यहाँ पे हुए, 2018 में किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, मीडिया को जिस तरीके से सैंक्शन किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए पॉलिटिकल क्लास की, तो किस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारनामे सर अंजाम दिए। खासतौर पर अगर बात की जाए डेमोक्रेसी की तो वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रही थी और आज आप कह रहे हैं कि आपके साथ ये मामला हो रहे हैं। आप ये बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है पीछे? इसमें कोई शक नहीं कि आज नाइंसाफी हो रही है तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन ये किया धरा किसका, ये बताइए। देखिए, मेरा ख्याल में खान साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभाला था तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ वाज़े कर दी थी कि जब तक 2/3 अक्सरियत से कोई जमात ना आए, ना वो आइन साजी कर सकती है, ना वो कानून साजी कर सकती है। ये जो मीडिया के साथ किसी भी मामले के अंदर जिनके साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, आप खुद इस बारे में वेल नोन हैं कि वो कौन लोग थे जो ये चीज़ें करते थे। आज इमरान खान की बयान, तस्वीर, उनका कोई भी प्रेस रिलीज होती है तो वो जब अरेस्ट हुए थे उनके बाद पाबंदी लगा दी गई थी। क्या वो हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी? क्या 2018 से लेकर 2021 तक क्या इमरान खान को फ्री हैंड मिला था? इमरान खान ने इसीलिए वाज़े पैगाम दे दिया था कि मेरे पास वाज़े अक्सरियत नहीं है, मुझे ब्लैकमेल किया जाता है। जब एक जमात वाज़े अक्सरियत के साथ आती है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो कोई भी दीगर सियासी जमात हो, जब तक आपके पास अब 2/3 अक्सरियत न होने की वजह से काम पे टांगें जो है वो पूरे पाकिस्तान में घूम रही है।
2/3 اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹائم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, جو کہ کل الیکشن کمپین کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے. کہہ رہا تھا جی میں چوک پہ رگڑوں گا, ایک کہہ رہا تھا جی میں روڈ پہ گھسیٹوں گا, لیکن آج اپنا مفاد آیا تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ تو مسودہ شیئر ہی نہیں ہوا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ مسودے بنانے والے کون ہیں, یہ پابندیاں لگانے والے کون ہیں, یہ سختیاں کرنے والے کون ہیں؟ یہ میں تو بھگت چکا ہوں, آپ شاید نہیں بھگتے ہیں, لیکن آپ کی سینئرز بھگت چکے ہیں. کافی سارے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں کہ کن نے کن کے ساتھ زیادتی کی تھی. باجوہ صاحب کا نام سر فہرست ہے. اگر آپ ابھی چاہتے ہیں کہ میں پوری ڈیٹیل سے بات کروں تو میرا خیال میں بھی مناسب ٹائم نہیں ہے. تھینک یو.